ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ایل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر۔ شوپیاں میں فوج اور عسکریت پسندوں کے درمیان انکاؤنٹر۔ چکورا نامی گاؤں میں فوج کو ملی تھی عسکریت پسندوں کی موجودگی کی خبر۔ صفاپورہ میں ایک کانکن کی اونچائی سے گرنے سے ہوئی موت، پورے علاقے میں غم کی لہر۔ بارہمولہ پولیس کی جانب سے مختلف پولیس اسٹیشنوں میں تھانہ دیوس پروگرام کا اہتمام، ضلع بھر کے اعلیٰ پولیس افسران کے علاوہ مقامی لوگوں نے کی شرکت۔ اور ضلع پلوامہ کے عبور باغ اور بڑی باغ لوگوں کو پل کی دیرینہ مانگ کو کیا گیا پورا، علاقے کے لوگوں نے کیا انتظامیہ کا شکریہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع کے چکورا علاقے میں فورسز اہلکاروں اور عسکریت پسندوں کے مابین انکاؤنٹر ہوا۔ ضلع ہیڈ کوارٹر شوپیاں سے قریب 12 کلومیٹر دور چکورا نامی گاؤں کو فوج نے عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع موصول ہونے کے بعد محاصرے میں لے کر تلاشی شروع کر دی، جس دوران ایک رہائشی مکان کے نزدیک فورسز اہلکاروں اور عسکریت پسندوں کے مابین فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور ساتھ ہی انکاؤنٹر شروع ہوا۔ آپ کو بتا دیں کہ انکاؤنٹر اب ختم ہو چکا ہے اور عسکریت پسند وہاں سے فرار ہو چکے ہیں۔ وسطی کشمیر کے ضلع صفاپورہ کے بالائی حصے میں ایک کانکن ایک پتھر کی کان میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ مہلوک شخص کی شناخت گلزار احمد میر کے طور پر ہوئی ہے۔ گاندربل حکام کے مطابق گلزار کان میں کام کر رہے تھے، تبھی انہوں نے اپنا توازن کھو دیا اور ایک اونچی چٹان سے نیچے گر گئے، جس کے نتیجے میں موقع پر ہی ان کی موت ہو گئی۔ گلزار احمد کی لاش برآمد کر لی گئی ہے۔ پولیس کو بھی اطلاع دی گئی اور مقامی پولیس اسٹیشن سے ایک ٹیم کو جائے وقوع پر بھیج دیا گیا تھا تاکہ اس معاملے کی تحقیقات ہو سکے۔ دریں اثنا پولیس نے اس واقعے کا ادراک کر لیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں تفتیش جاری ہے۔ اس پورے واقعے نے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ محکمہ زراعت کی جانب سے آج ضلع پلوامہ کے گلزار پورہ اونتی پورہ میں سرسوں اتسو کا اہتمام کیا گیا، جس میں کسانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد نے شرکت کی۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے گلزار پورہ اونتی میں آج محکمہ زراعت کی جانب سے سرسوں اتسو منایا گیا۔ اتسو کا افتتاح فائنینشیل کمرشل ایڈیشنل چیف سیکرٹری اتر ڈلو نے کیا۔ اس موقع پر ناظم زراعت چودھری محمد اقبال اور ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ بصیر الحق چودھری کے علاوہ کسانوں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ پلوامہ ضلع میں 18,600 ہیکٹر زمین پر سرسوں کی پیداوار کی گئی ہے، جبکہ اس موقع پر کئی کسانوں میں سینکشن لیٹر بھی جاری کیے گئے۔ اس موقع پر فائنینشیل کمشنر ایڈیشنل چیف سیکرٹری اتر ڈلو نے بات کرتے ہوئے کہا کہ سرسوں اگانے سے ہمارے مختلف شعبوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور کسانوں کو چاہیے کہ وہ میوہ جات کے ساتھ ساتھ سرسوں اور دیگر فصلوں کو بھی اگائے تاکہ ان کی آمدنی میں اضافہ ہو۔ اینول ہسبنڈری کے شعبے کو بینیفٹ ملتا ہے، ہمارے ہارٹیکلچر کے شعبے کو بینیفٹ ملتا ہے، ہمارے شہد کے سیکٹر کو بینیفٹ ملتا ہے۔ تو اب ہم ہمارے جو کسانوں کو میں یہی اپیل کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ رقبہ کو ربی کی فصلوں میں لائیں، چاہے وہ سرسوں ہو، چاہے وہ فاڈر ہو، برسیم ہو، لنسیڈ ہو، اس کے تحت لائیں اور ویلیو ایڈیشن کی قدم اٹھائیں تاکہ ہم یہ جو سرسوں ہے اس سے تیل بھی نکالیں اور ایک کشمیر برانڈ کے نام سے اینول ہسبنڈری
बारामूला पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में थाना दिवस प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। इन प्रोग्रामों में ज़िला भर के आला पुलिस अफसरों के अलावा मकामी लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस दौरान मकामी लोगों ने पुलिस के सामने मुख्तलिफ मसाइल रखे और पुलिस ने लोगों को यकीन दहानी कराई और कहा कि वक्त पर लोगों के मसाइल का इजाला किया जाएगा। इस दौरान पुलिस ने लोगों को कहा कि जो भी लोग मनशियात या दीगर गलत कामों में मुलविस हैं उनका किला कमा करने के लिए पुलिस का ताउन फराहम करें। अब हम नहीं चाहेंगे कि अल्लाह न करे कि एक और नस्ल हमारी ड्रग्स की वजह से खराब हो जाए। हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि पब्लिक को आसाइश पहुंचाई जाए। पब्लिक के जितने भी इश्यूज हैं, जो पुलिस रिलेटेड इश्यूज हैं, उनको अब हम डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बशारत कयूम ने आज यात्रा ट्रांजिट कैंप्स FCI गोडाउन में बाज़ार और अखरोट फैक्ट्री काजीगुंड का एक वसी दौरा किया और यात्रा सन 2023 के ज़ायरीन के लिए दस्तियाब इंतज़ामात और सहूलियात का जामे जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके साथ ADC अनंतनाग, SDM डोरा, SE हाइड्रोलिक और दीगर मुताल्लिक़ा सिविल और पुलिस अफसरान मौजूद थे। DC ने मुताल्लिक़ा अफसरान को इस दौरान हिदायत दी कि वो मेर बाज़ार ट्रांजिट कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा ज़ायरीन को ठहराने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए कोई तरीक़े अमल में लाए। बादशाह उन्होंने तहसील दफ्तर काजीगुंड का दौरा किया और इसके कामकाज का मुख्तसर जायज़ा लेने के अलावा तहसील ऑफिस काजीगुंड के जारी कामों की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया। नहीं है सर, बिफोर ये हम इसको सर ठीक करवा देंगे सर। हमारे ज़िले अनंतनाग के लालन में CRPF 40 बटालियन की जानिब से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिस दौरान CRPF के तिब्बी माहिरीन ने इलाके के सैकड़ों लोगों का इलाज व मुआलजा किया और इनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम की। तिब्बी कैंप में इलाज की सहूलत हासिल करने वालों में ख्वातीन और बच्चे भी शामिल थे। मकामी लोगों ने CRPF की जानिब से उठाए गए इस इक़दाम की सताइश करते हुए फ़ौज का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हुकूमत की जानिब से हमारे इलाके में माकूल तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं की गई हैं। ताहम वक्तन फ़ौक़तन फ़ौज की जानिब से हमारे इन पसमानदा इलाकों में ऐसे मेडिकल कैंप का क़याम अमल में लाया जाता है और इलाज मुआलजे के साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी दी जाती हैं। इन्होंने फ्री मेडिकल कैंप था, मेडिसिन प्रोवाइड किया, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा रहा। तो इनकी जो सहायता है, लोगों की बहुत अच्छी तरह इन्होंने सहायता की, तो इनके लिए ये बहुत अच्छा रहा और इनका बहुत अच्छी तरह से लोगों ने भी कोऑपरेट किया। बहुत से लोग आए, लोग भी अच्छी तरह से जो अद्वियात ले रहे हैं, तो ये बहुत इनका प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। कमांडिंग ऑफिसर RP मीना ने बात करते हुए कहा कि CRPF की जानिब से लोगों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए साल में बहुत सारे मेडिकल कैंप्स का एहतमाम करते हैं ताकि आवाम की मदद की जा सके। जहां पर भी लोगों को ज़रूरत होगी, ना ही सिर्फ मेडिकल कैंप बल्कि और कई तरह के काम हमारे इस सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत अमल में लाए जाते हैं और आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी जगहों पर ऐसे मेडिकल कैंप्स का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों को टाइम टू टाइम दवाई मिल सके। तो आज हमने मास लेवल पे काफ़ी लोगों को इनवाइट किया है, जिसकी भी ज़रूरत है सब आए अपना आज फ्री चेकअप है, फ्री मेडिसिन है, लेके जाएं। इस साल का ये पहला ही है और हमारे पास अभी और भी कई मौके हैं, 5-7 कैंप और भी बने हैं। तो हम कोशिश करेंगे जहाँ पे आवश्यकता ज़्यादा हो और गरीबी ज़्यादा हो या जहाँ पे चीज़ों की ज़रूरत हो, वहाँ पे ही हम कैंप लगाएं। अनंतनाग के चारों तरफ के इलाके में जहाँ पे पब्लिक मतलब जहाँ पे सुविधाएँ कम हैं जी, वो फाइंड आउट करेंगे और फिर वहीं पे ऑर्गेनाइज करेंगे। लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं और लोग आज सब बहुत ज़्यादा संख्या में जिसको ज़रूरत आती भी है। और
اس طرح کے کیمپوں کی خوب ستائش کی جانی چاہیے، کیونکہ دور دراز کے لوگوں کے لیے شہروں میں آ کر علاج کروانا کافی محنت طلب اور تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، اور پھر اخراجات کا مسئلہ بھی درپیش رہتا ہے۔ مفت طبی کیمپ سے ان لوگوں کے صحت سے جڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور انہیں مفت دوا بھی مل جاتی ہے۔ منصف ٹی وی کے لیے اننت ناگ سے غزالہ نثار کی رپورٹ۔ آج 21 رمضان حضرت علی کی برسی ہے۔ پورے ملک کے ساتھ ساتھ لداخ میں بھی برسی منائی گئی۔ کرگل کے تمام علاقوں سے لوگ امام علی بن ابو طالب کی شہادت کی سالانہ برسی کے موقع پر ماتمی جلوسوں کی شکل میں کرگل بازار پہنچے۔ ماتمی جلوس جو مین بازار کرگل سے ہوتے ہوئے قنیل گاہ حسینی اور پبلک لداخ JUIAK پارک کرگل کے بینر تلے IKMT اور یہاں پر اختتام پذیر ہوئے۔ اسلام اور امت مسلمہ کے لیے ان کی خدمات اور کوششوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کرگل بھر میں حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و تعلیمات اور اسلام میں ان کی خدمات پر روشنی ڈالی اور ملک میں امن و سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ ضلع پلوامہ کے وور باغ اور بڑی باغ کے لوگوں کی فوٹ پل کی دیرینہ مانگ کو انتظامیہ نے آج پورا کر دیا ہے۔ علاقے کے لوگوں نے انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے وور باغ اور بڑی باغ کاکاپورہ علاقے میں رومشی نالے پر ایک پل نہ ہونے کی وجہ سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، جبکہ علاقے کے لوگوں نے پل تعمیر کرنے کے لیے کئی بار انتظامیہ سے اپیل کی تھی۔ وہیں اب اس علاقے میں انتظامیہ کی جانب سے ایک فٹ پل تعمیر کیا گیا ہے، جس پر علاقے کے لوگوں نے انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ نے اس علاقے کی دیرینہ مانگ کو پورا کیا ہے، جبکہ انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ وہ اس علاقے میں اور ایک پل تعمیر کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جہاں سے گاڑیوں کی آمد و رفت کو ممکن بنایا جا سکے۔ تہد بڑ شکر گزار کہ تہندِ وسالتہ ست بنو یہ کدل تہندِ یور ین ست لہذا کرت یوکتی یژھان کہ اس گوٚژھ کدل بن ہیرم کدل ون یت گاڑی ترہا اور یور ماروتی کانٛہہ چیز ترہا تت بنہ۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس علاقے میں کئی سال قبل PDP کانگریس والے متحدہ سرکار نے اس پل کو تعمیر کرنے کے لیے سنگ بنیاد رکھا تھا، تاہم کئی سال گزرنے کے باوجود اس پل کو تعمیر کرنے کا کام شروع نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس رومشی نالے پہ اگرچہ ایک عارضی پل بنایا گیا تھا جہاں سے گزرنے کے دوران کئی لوگ اس سے گر کر ہلاک ہو گئے، وہیں اب انتظامیہ نے اس فٹ پل کو تعمیر کر کے لوگوں کی مشکلات کا ازالہ کرنے میں کچھ حد تک کامیابی ضرور حاصل کی ہے۔ اس سلسلے میں مقامی لوگوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے 15 سالوں سے انہیں مشکلات کا سامنا تھا، اب 15 سال گزرنے کے بعد ہماری مشکلات کا کچھ حد تک ازالہ کیا گیا ہے، پر ہم انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ اسی علاقے میں ایک اور پل تعمیر کیا جائے جہاں سے گاڑیوں کی آمد و رفت ممکن ہو تاکہ ہمارے مسئلے کا پوری طرح سے ازالہ ہو جائے۔ اس سلسلے میں DDC ممبر نیوا عبدالعزیز میر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس پل کو تعمیر کرنے کے لیے لوگ کافی سالوں سے مانگ کر رہے تھے، جبکہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور اب اس علاقے میں فٹ پل تعمیر کیا گیا ہے جس سے عوام کو کافی راحت مل گئی ہے۔ باغ اور بڑی باغ کے درمیان جو آر پار لوگ گاؤں آتے ہیں، 10-20 گاؤں کو آنے جانے میں مشکلات آتے ہیں، اس پر اب فٹ برج بنایا گیا ہے جو کہ بلاک کی طرف سے
उसकी फंडिंग हुई है, वो तैयार हुआ है। 4 करोड़ का प्लान बनाया गया है जो कि नाबार्ड को भेजा गया है। जब उसकी मंजूरी आएगी तो ये फुट तैयार, ये असली पुल बनाकर रहेगा तो लोगों को आराम आसाइश मिल सकता है। उन्होंने कहा कि अब इस इलाके में एक और पुल 4 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा, जहां से गाड़ियों की आमदरफ्त मुमकिन हो सके, और इसको तामीर करने का काम भी जल्दी शुरू किया जाएगा। शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर के दूर इफ्तादा गांव जालोरा के लोगों ने सरकार के ख़िलाफ़ नाराज़गी का इजहार किया और बताया कि उनके इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुक़दान है। मकामी लोगों ने बताया कि अगरचे सरकार मौजूदा वक्त पर कश्मीर के मुख्तलिफ़ अज़ला में तरक्याती काम करती है, लेकिन उनके गाँव को नज़रअंदाज किया गया है। लोगों ने सरकार और ज़िला इंतज़ामिया बारामूला से गुजारिश की है कि उनके इलाके की तरफ तवज्जो दी जाए ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सकें। हमेशा बार हम इल्तिजा करते हैं गवर्नमेंट को कि यहाँ प्रॉब्लम बहुत है, सड़क की भी प्रॉब्लम है, पानी का भी प्रॉब्लम है और बिजली का भी खास प्रॉब्लम है। वो गवर्नमेंट बोलते हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पर तो काम ही नहीं जाता है। बिल्कुल हम इस तरह है ना कि जैसा कि सतोली माँ की सलूक होती है हमारे लिए, हमारे साथ। क्योंकि हम रिक्वेस्ट करते हैं आपकी वजह से हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को, मेहरबानी करके इस जालोरा को तवज्जो दी और ताकि हम मुश्किलात थोड़ा काम किया लेकिन पूरा काम नहीं हो। बिजली देखो आप, यहाँ के हमारे खंबे हैं वो तो दरख्तों पर चढ़े हैं, हमारी तार वो भी तार भी नहीं है पूरी। हम तंग पड़ गए बिजली वालों के पास जाकर, रोड वालों के पास, परसों भी एक्सीडेंट के पास गए, फिर भी यहाँ रोड की कोई अहमियत नहीं है। जहाँ भी कोई भी गाड़ी है ना, 2 मिनट 1.5 मिनट के बाद वो रिपेयर करनी पड़ती है हर गाड़ी को। यहाँ बिजली का प्रॉब्लम है, हर जगह कोई न पोल है न कोई है, कोई प्रॉब्लम। हम हर बार गए इनके पास, हमें ये बिजली अब आपकी वसादत से गवर्नर से अपील करते हैं, मेहरबानी करके आज हर जगह काम हो रहा है, हर जगह। हमारे गांव को क्यों नहीं है? हमारे गांव को कम से कम मिलना चाहिए, कम से कम हमें भी अब शेयर मिलना चाहिए। यही गवर्नर से हम अपील करते हैं, मेहरबानी। बहार की आमद के साथ ही जहां वादी कश्मीर के मशहूर और मारूफ सियाहती मकामात पर मकामी व गैर मकामी सयाहों का तांता लगने लगता है, तो वहीं जर्द फूलों से लहलहाते सरसों के खेत खलियान भी सयाहों की दिलचस्पी का मरकज़ बनते हैं। वादी कश्मीर में इस वक्त खेतों में सरसों के फूल खिले हैं, जिससे वादी की कुदरती खूबसूरती दोबाला हो गई है। शोहरे आफाक सियाहती सोनामर्ग जाने वाले गैर मकामी सयाह जब रास्ते में सरसों के खेतों का नज़ारा करते हैं तो वो गाड़ियों से उतरकर इन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और खेतों में जाकर फ़ोटोग्राफ़ी भी करते हैं। सरसों के खेतों से गुज़रने के दौरान गैर मकामी सयाह ख़ास तौर पर रुक जाते हैं और इन खेतों की खूबसूरती से भी लुत्फ़अंदोज़ हुए बगैर आगे नहीं बढ़ते। गया वो जादूगर। मकामी अफराद का कहना है कि सरसों के खेत भी अब यहाँ सियाहती मकाम की तरह सयाहों की दिलचस्पी का मरकज़ बन रहे हैं, जो एक अच्छी बात है क्योंकि इससे सियाहती शोबे को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत है कश्मीर, बहुत ही अच्छा है। We are enjoying it so much and people are so cooperative and supportive. We love this place. और ट्यूलिप गार्डन जैसा तो और कुछ है ही नहीं। जैसे क्यों सिंगापुर जाते हो, क्यों हांगकांग जाते हो, कश्मीर आओ, आज इज वेरी नाइस। और रास्ते में ये खूबसूरत जो सरसों का खेत आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम रुके हैं, यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए हम रुके हैं। It's beautiful. Keep promote Indian tourism. Come to Kashmir, friends. Nothing is so good as this. उन्होंने बताया कि सरसों के खेतों की खूबसूरती तो मकामी लोगों को मसरूर करती ही है, लेकिन गैर मकामी सयाहों की तो बात ही नहीं। उन्होंने कहा कि न सिर्फ गैर मकामी सयाह बल्कि मकामी लोग भी इन खेतों में जाकर खूबसूरत फूलों के बीच फोटोग्राफी करते हैं। गैर मकामी सयाहों का भी मानना है कि
मौसम बहार में कश्मीर की सैर के लिए ज़रूर आना चाहिए ताकि सरसों के फूलों के नज़ारों से भी लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका मिल सके। हम लोग घूमने के लिए कश्मीर आए हुए हैं, यहाँ की वादियों का नज़ारा ले रहे हैं हम लोग। ये सरसों के खेत हैं, उनका लुफ्त उठा रहे हैं। कश्मीर एक जन्नत है, वाकई में पहली बार आई हूँ मैं यहाँ। कश्मीर एक जन्नत ही लग रहा है। गुलमर्ग में भी खूब एंजॉय किए, बहुत ही अच्छा रहा। लाइफ का ये क्या बोलना चाहिए, अचीवमेंट है हमारे लिए कि हम कश्मीर में आ पाए। बहुत अच्छा था, बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं। हम तो यही बोलेंगे कि हर महीने जाएं आप कश्मीर। लाइफ में हर महीने हो नहीं पाएगा, लेकिन जाए, मतलब जितने भी दोस्त आ रहे हैं कम से कम एक बार तो जरूर आए। खातून सैयाह ने कहा कि सरसों के खेतों की खूबसूरती देखकर मैं दंग रह गई हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा खूबसूरत नज़ारा अपनी ज़िंदगी में अब तक नहीं देखा। जी करता है कि इन्हीं खेतों में दिन रात रह जाऊँ। और यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ की इतनी खूबसूरत वादी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सरल हैं, सच्चे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। और मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ आके मेरे को जन्नत की खुशी मिल गई लग रहा है। कोई एक बार ज़रूर जाओ कश्मीर, स्टेट का विजिट करो, और अगर कश्मीर नहीं गए तो कहीं नहीं गए दुनिया में। ये पूरा जन्नत जो बोलते हैं ना, धरती का स्वर्ग, मैं 5th क्लास से पढ़ते आ रही थी कि ये धरती का स्वर्ग है, और यहाँ आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि सच में धरती का स्वर्ग है। हुक्काम के मुताबिक वादी कश्मीर में गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान सरसों की काश्त 30,000 एकड़ अराजी से 1.4 लाख एकड़ अराजी तक पहुँच गई है। मुतल्लिका महकमे की काविशों के नतीजे में वादी में उस अराजी पर भी सरसों की फसल उगाई जा रही है जो पहले खाली पड़ी रहती थी। किसानों के मुताबिक इस साल सरसों की काफ़ी अच्छी फसल है, जिससे इनको काफ़ी फ़ायदा होने की तौक़्क़ो है। मुंसिफ टीवी के लिए सोनामर्ग से राजा सैयद की रिपोर्ट। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। शोपियां में फौज और अस्करियत पसंदों के दरमियान इनकाउंटर। चकोरा नामी गांव में फौज को मिली थी अस्करियत पसंदों की मौजूदगी की खबर। सफापुरा में एक कानकन की ऊंचाई से गिरने से हुई मौत, पूरे इलाके में गम की लहर। बारामूला पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में थाना दिवस प्रोग्राम का एहतमाम। जिला भर के आला पुलिस अफसरों की कसीर तादाद में की शिरकत। जिला पुलवामा के वूरबाग और बड़ी बाग लोगों की फोर्ट पुल की देरी न मांग को किया गया पूरा। इलाके के लोगों ने किया इंतजामिया का शुक्रिया अदा। नाजरीन, आपको बताते चलें कि आपका पसंदीदा चैनल मुंसिफ अब डेन हैथवे पर भी दस्तयाब है और ये बिल्कुल मुफ्त है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, उड़ीसा और कर्नाटक के नाजरीन नीचे दिए गए नंबर पर महज सब्सक्राइब करें और चैनल आपके टीवी सेट पर दस्तयाब रहेगा। JKL डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।